एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल BA ਸਮੈਸਟਰ 5 इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਪੋਇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਫ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਇਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ उस चीज़ के बारे जानकारी हासिल करनी है, तो आप अगर उसका सोशल लाइफ देखांगे उस टाइम पीरियड की, तो सानू आप ही पता लग जाएगा कि उतों का लिटरेचर किवें दा सी। ठीक है, दोनों चीज़ां लिटरेचर तो सोशल बैकग्राउंड जिहड़ा है कनैक्टेड आ। दिस एज बिगिनस विद द क्वीनस विक्टोरियाज असैशन इन 1837 एंड एंड्स विद हर डैथ इन 1901। तो विक्टोरिया का जदों असैशन होया 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਏਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ। Victorian age is remarkable because it was an age of materialism, political consciousness, industrial progress, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਵਿਟਨੈਸਡ एक्विजिट मोर दैन एक्सपैक्टेड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ पोइट्री प्रोज फिक्शन। तो मोर दैन एक्सपैक्टेड एडवांसमेंट हुई सी किहड़े फील्ड विच, पोइट्री दे विच, प्रोज दे विच अते फिक्शन दे विच। सम ऑफ इट्स करैक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स अगे ने, आपां ने सिर्फ थोड़ा जिहा इंट्रो किया। हुण सब तो पहलां तां पीस एंड प्रोस्पैरिटी चल रही सी उस टाइम पीरियड दे विच। द विक्टोरीअन एज वाज इसेंशली अ पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पैरिटी फॉर इंग्लैंड। Fine. It was an era away from wars and destruction and people felt safe and secure। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਵਿਨਾਸ਼, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੂ ਬੀਅਰਸ ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਸੋਰੋ ਐਂਡ ਪਾਵਰਟੀ ਆਫ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਲ ਦ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜਡ ਕਲਾਸਿਸ ਰੀਪ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਕੌਣ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਏਜ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਪਿਨਿੰਗ ਲੂਮਸ ਟੂ ਸਟੀਮ ਬੋਟਸ, ਸਟੀਮ ਇੰਜਨਸ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਮੈਚ ਬਾਕਸਿਸ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਲੂਮਸ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਚ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਾਈਟ ਬੱਲਬ ਆ ਗਏ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਆ ਗਈ, ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਲੂਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਦ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੇਬਰਰਸ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ ਬਰੋਟ ਡਿਸਪੇਅਰ ਐਂਡ ਪੈਸੀਮਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇਮ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟਰੈਸ ਮਤਲਬ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਰਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲੋਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ caught the eyes on social reformers
एंड अ स्टेज वॉज सैटअप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल। डाउन ट्रोडन कौन होंगे ने? दबे कुचले लोग। तो रिफॉर्मर्स ने इन्हां नूं देखिया ते इन्हां दी हालत के उत्ते लिखना शुरू किया, इन्हां दे बारे सोचना शुरू किया ते मंग की सरकार तो कि भी इन्हां लई रिफॉर्म्स होने चाहिए ने, सुधार होने चाहिए ने। वी नोटिस द झील ऑफ द राइटर्स ऑफ दैट एज लाइक चार्ल्स डिकन्स। तो चार्ल्स डिकन्स वर्गे राइटर हो गए, होर राइटर हो गए लाइक रस्किन बॉन्ड हो गया। तो इन्हां दे जो भी इन्हां ने लिखिया तो उहदे विच भी रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया। कंडीशन क्योंकि उत्थों की सोशल बैकग्राउंड भी लिखी है और लिटरेचर के नाल तो टचड ही सी, नाल ही इन्हां ने जिहड़ा हैगा रिफॉर्म्स की भी गल की है। उस टाइम बौद्धिक लोग बहुत ज़्यादा सी, इंटलैक्चुअल पीपल बहुत सी। तो इंग्लैंड विटनैसड एक्सपेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लोग जिहड़े ने एजुकेशन के वल जा रहे सी तो इंग्लैंड विच ये चीज़ बहुत देखी गई कि सिक्ख्या का जिहड़ा हैगा वो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपैंड हो रही है। द प्रैस बिकेम एन इफैक्टिव फोर्स। जिहड़ी प्रैस, ठीक है, प्रैस यानी कि जे अखबारां रसाले छपते हैं, मैगजीन छपते हैं, तो ये सारी चीज़ जी सी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया सी, टूल बन गया सी। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एसेज, पोएम्स, नॉवल्स वर ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट। इन्नी जिहड़ी हैगी है मात्रा दे विच पोएम्स लोग लिख रहे सी अते मार्केट दे विच भी ऐसे पोएम, नॉवल सब कुछ ये अवेलेबल सी। these emerged these emerged a public consciousness। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ, ठीक है, बिल्कुल रिस्पोंसीबल हो गए सी। तो इतने स्पैलिंग ठीक कर लियो। तो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक हैगी विक्टोरियन पीरियड की कि इस टाइम लोग जिहड़े सी प्रॉपर कॉन्शियस सी नॉलेज के प्रति, सोशल रिस्पोंसीबिलिटी के प्रति, एंड आलमोस्ट ऑल ऑफ दैम सपोर्टड सम डॉक्ट्राइन्स और द अदर। हुण किसी ना किसी डॉक्ट्राइन नूं, समाज सुधारक नूं, ये सारे जिहड़े सी किसी ना किसी एक डॉक्ट्राइन नूं फॉलो कर रहे सीगे, सपोर्ट कर रहे सी। दे ऑलवेज ट्राई टू ऑफर सम सोल्यूशन फॉर मैनस परपलैक्सिटीज़ एंड डिस्पेयर। तो ये जिहड़े है सोल्यूशन लभ रहे सीगे। लिटरेचर आल्सो डिपार्टेड फ्रॉम द प्योरली आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स। तो आर्ट ना रह के एक ही सी, अलग चीज़ बन गया सी। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग आर्ट फ्रॉम आर्ट सेक द राइटर एडोप्टेड अ डेफिनेट मोरल परपज़। तो इन्हों एक मोरल परपज़ हो गया सी, नैतिक, ठीक है, नैतिक उद्देश हो गया सी। सो आर्ट जिता सी ही सी, आर्ट तो अलग भी ये चीज़ चल रही सी। तो इन्होंने आर्ट वाल इन्ना नहीं वो किया कि हाँ सी आर्ट ही इत्थे लिटरेचर नूं आर्ट के वजों ही चलना हैगा, चलाउणा हैगा। इन्होंने एक मोरल परपज़ भी अपना जिहड़ा सीगा बना लिया सी। साइंटिफिक एंड इंटलैक्चुअल एडवांसमेंट। तो एडवांसमेंट का मतलब होंदा ग्रोथ। हुण साइंटिफिक ग्रोथ हो रही सी, इंटलैक्चुअल ग्रोथ भी हो रही सी, ठीक है। मैं हुणे दस के हटी हाँ कि एजुकेशन स्प्रैड हो रही सी, लोग लिखना स्टार्ट कर रहे सी, मीडिया, प्रैस, है ना, ये सारिया चीज़ां आ रही सी। अते मार्केट दे विच जो भी ऐसे पोइम्स लिखिया जा रही सी, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे सी, वो तड़ातड़ विक रहे सी। हुण विक्टोरियन पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ इन्वेंशनस, डिस्कवरीज एंड ऑफ साइंटिफिक टेंपर। A great number of works were carried on in the scientific field। हुण ये जिहड़ा हैगा इस टाइम साइंटिफिक चीज़ां बहुत हो रही सीगियां, बहुत सारे काम हो रहे सी, बहुत सारे मैंबर जिहड़े सी इहदे विच जुड़े हुए सी। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड रिफ्लैक्टेड द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ एंड द इंटरस्ट टू ऑल एंड प्रूव टू बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द ह्यूमन प्रोग्रेस। हुण इस टाइम पीरियड दे विच क्योंकि तरक्की हो रही सी तो लोकां दीयां प्रॉब्लम्स भी उजागर कीतियां जा रही सी, ठीक है। अते जिहड़ी अपनी तरक्की हो रही सी ये भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बना के जिहड़ा है ह्यूमन प्रोग्रेस लई यूज़ किया जा रहा सी। द पैथेटिक मिजरेबल कंडीशन ऑफ विमेन इज़ आल्सो इंस्पायरिंग फैक्टर ऑफ लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। सो ये जिहड़ा विमेन कर दिओ इत्थे विमेन की मिजरेबल कंडीशन भी जिहड़ी हैगी है आपां नूं इस दे विच टाइम पीरियड च दिखाई गई है कि किदां दी उहदी विमेन की कंडीशन हो गई सी। रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म। तो धर्म अते देशभक्तिकरण। सो इन स्पाइट ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड द वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज the general temperament of life was still governed by religious and moral consideration।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨਸ ਵਰ ਮੋਰਲਿਸਟ ਐਟ ਹਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਆਲ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਇਟਸ, ਨੋਵਲਿਸਟ, ਐਸੇਇਸਟ ऑफ दिस पीरियड वर मोरल टीचर्स। तो ये सारे मॉरल टीचर सी, कुछ भी लिखते सीगे मॉरल एजुकेशन नूं लैके लिखते सीगे। इन्हां दा थीम यही चलता सी, पैट्रियोटिज़म चलता सी। आ नोट ऑफ पैट्रियोटिज़म रेन थ्रू द विक्टोरियन लिटरेचर। तो मतलब कहने का मतलब पैट्रियोटिज़म, देशभक्ति की भावना, नैशनलिस्ट है ना, ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां ने देखण नूं मिलदियां ने। मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ नूं लैके चलते सी। टेनीसन हो गया, चार्ल्स डिकन्स हो गया, वर इंस्पायर्ड बाय नैशनल प्राइड, नैशनल प्राइड ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਪੋਜੈਸਡ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਫॉर देयर ਕੰਟਰੀ, ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਓਵਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣਾਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਫ, ਡੈਕੋਰਮ ਐਂਡ ਡਿਸੈਂਸੀ। ਦ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨਸ ਅਪਹੈਲਡ ਦ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਚਿਲਡਰਨ। एम्फसिस वाज लेड ऑन अथॉरिटी एंड रिस्पैक्ट फॉर एल्डर्स। तो इत्थे दिखाया गया कि जोर दिता गया, एम्फसिस किया गया कि जिहड़ी है अथॉरिटी अते रिस्पैक्ट करो बजुर्गों की अथॉरिटी की, अते उन्हां दा आदर करो। बट विमेन वर एक्सपैक्टेड टू कल्टीवेट डोमैसटिक वर्चूज़। लेकिन विमेन नूं जिहड़ा सीगा वो एक्सपैक्ट किया गया भी तुसीं जिहड़ा है डोमैसटिक काम ही करने ने। लुक आफ्टर होम, घरां दी देखभाल करो, बच्चे संभो, ठीक है, बजुर्गों का आदर करो, अगर कोई गैसट आए तो उसकी सेवा करो। एंड वर कंसीडर्ड इनफीरीयर टू मैन, उन्होंने आदमी के बजाय जिहड़ा है इनफीरीयर किया जाता सीगा, समझा जाता सी। द विक्टोरियंस पुट स्ट्रैस ऑर्डर, डेकोरम एंड डिसेंसी। सो विक्टोरियंस ने इन्हां दे उत्ते स्ट्रैस पाया। लव, ट्रुथ, जस्टिस वर द चीफ एम्स ऑफ विक्टोरियंस। द मेन एम की सी, लव के उत्ते लिखते सी, ट्रुथ के उत्ते, जस्टिस के उत्ते। विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ कंप्रोमाइज़ बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अरिस्टोक्रेसी, इंडस्ट्रीयल प्रोग्रेस एंड पावर्टी, एक्सैप्टेंस एंड सोशल इंटरस्ट अनरैस्ट। ठीक है, सो विक्टोरीयन एज दे विच जिहड़ा सीगा डेमोक्रेसी के उत्ते, अरिस्टोक्रेसी के उत्ते, इंडस्ट्रीयल प्रोग्रेस के उत्ते, एडवांसमेंट के उत्ते, पावर्टी के उत्ते, सोशल अनरस्ट के उत्ते जिहड़े सीगे लिखा जाता सी। द विक्टोरीयन पोइट्स एंड नोवलिस्ट एडेड ह्यूमैनिटी टू नेचर। तो काम किने किया, विक्टोरीयन पोइट्स ते नोवलिस्ट ने, इन्होंने ह्यूमैनिटी ऐड की। ठीक है, एंड आर्ट एज अ सबजैक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर। अते इन्होंने की है कला का, ये आर्ट तो कर ही रहे थे लेकिन इन्होंने होर भी जिहड़े सीगे टच ये पाए अपने लिटरेचर दे विच। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्टरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्टरी दे विच बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड रहा है। सो ये सी अज दा वीडियो। इस तो बाद आपां नॉवलिस्ट ते पोइट करांगे। थैंक यू सो मच।